Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are with the lecture number 16 from the chapter Lines and Angles in 9th class Mathematics. Our today's topic is exercise 5.1, question number 6. Let's read question number 6. It is given that angle XYZ is equal to 64 degree. Angle XYZ is equal to 64 degree. XYZ is equal to 64 degree. And XY is produced to point P. This XY that has been extended, that has been produced up to point P. Draw a figure from the given information. Okay, this angle XYZ is equal to 64 degree, that is given, but there is also something here, that is XY is produced to point P. XY has been produced to point P. It is, this figure is not being made in the textbook. It has not been made in the textbook. In fact, it has to be made by the student himself or herself. Let's complete this figure. We have to extend. We have to extend this XY up to P. Okay, we are going to extend this XY up to some point to be named as P. तो हम इसको XY को हम एक्सटेंड करेंगे. तो आप थोड़ा सा लाइन पे रहिए, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ ताकि हमारा पॉइंट P निकल जाए. चलिए जी, हो गया. तो मैंने इसको एक्सटेंड किया, XY को मैंने एक्सटेंड किया. यहाँ मैं एरो डालूँगा और यहाँ पे मैं P लिखूँगा. तो मैंने XY को एक्सटेंड किया, मैंने इसको प्रोड्यूस किया अप टू पॉइंट P, जो क्वेश्चन में लिखा था. XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P. XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P. तो ड्रॉ a figure from the given information. तो फिगर तो बन चुकी है. एक तो XYZ 64 डिग्री है. नंबर 2, XY को हमने प्रोड्यूस किया अप टू पॉइंट P. उसके बाद कह रहा है कि if ray YQ bisects YQ, Y is here and Q is somewhere here, somewhere here, but it bisects. Ray YQ bisects angle ZYP. Why this angle ZYP? Angle ZYP has been bisected by ray YQ. Let's draw YQ such that it bisects angle ZYP. Okay. मेजर करके नहीं करना है हमें, तो अंदाजे से हमें डालनी है रे YQ. अंदाजे से हम YQ डालेंगे. चलिए जी, ऑफलाइन पे रहे. एक मिनट. तो मैं यहाँ पे YQ डाल रहा हूँ. चलिए जी, तो ये बन गई हमारी रे YQ. मगर ये जो रे YQ है, ये बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को? एंगल ZYP को. दैट मीन्स ये जो एंगल यहाँ पे बना और ये जो एंगल यहाँ पे बना, these two angles are equal because YQ is bisecting angle ZYP. That means two angles are formed, two equal angles are formed. That is, angle ZYQ is equal to angle QYP. These two angles are equal. Now what we have to prove? We have to find angle XYQ. This angle is to be found out. XYQ
And second thing is we have to find reflex angle QYP. QYP, it is reflex angle. QYP is this angle, and we have to find the reflex angle of this angle, that means on the back side of this angle. If we know this angle QYP, we can find out the reflex angle. We can find out the reflex angle QYP. Now what is given to us? Let us see what is given to us. गिवन तो हमारे पास है, एक तो एंगल XYZ है, that is equal to 64 degree, isn't it? Also ये जो YQ है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP को, इसका मतलब हुआ एंगल ZYQ is equal to angle QYP. ठीक है ना, ये तो गिवन है. एक तो एंगल XYZ 64 डिग्री और नंबर 2 एंगल ZYQ is equal to एंगल QYP. ये दो आपस में बराबर है. तो चलिए हमें देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, क्या ढूंढना है. हमें अपने टू प्रूव भी लिख सकते हैं, टू फाइंड भी लिख सकते हैं. फाइंड में ढूंढना क्या है, तो ढूंढना हमें है यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड एंगल XYQ. एंगल XYQ, ये वाला एंगल XYQ, चूंकि दो एंगलों से बना हुआ है, अगर हमें एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल भी अगर हमें पता चल जाएगा, यानी ZYQ, तो हम इन दो एंगल्स को ऐड करके एंगल XYQ को निकाल सकते हैं. तो हमें XYQ निकालना है, जो कि सम ऑफ टू एंगल्स है. वन एंगल इज गिवन, अनदर एंगल इज टू बी फाउंड आउट. इसको हम ढूंढेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड करके एंगल XYQ निकाल सकते हैं. तो दूसरी चीज़ भी हमें निकालनी है, वो है ऑल्सो रिफ्लेक्स एंगल QYP. ये भी हमें निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल QYP. ठीक है, QYP भी निकालना होगा, एंगल QYP भी निकालना होगा, तब हमें रिफ्लेक्स एंगल QYP निकलेगा, यानी बाहर जो एंगल बन रहा है वो भी निकल जाएगा, मगर QYP भी निकालना है. ठीक, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कैसे देंगे. अगर आप ध्यान रखते हो तो गौर से आप देखो, जो ये तीनों एंगल है, ये और ये, इनका सम कितना होगा? इनका सम कितना है? 180, because all these three angles are formed on the same line, that is XP. So the sum of these three angles is 180 degree because of linear pair action. All these three angles are formed on the same line. So we can write now angle XYZ plus angle ZYQ plus angle QYP. किसके बराबर है? 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर एक्शन बन रहा है. तीनों एंगल एक ही लाइन पे खड़े हैं, तो 180 डिग्री. आगे देखते हैं. अगर आप गौर से देखोगे, XYZ तो दिया हुआ है 64 डिग्री, तो हम 64 डिग्री लिखेंगे, प्लस ZYQ हमें पता नहीं है, तो हम ZYQ ही लिखेंगे. ZYQ प्लस
ये जो एंगल क्यू वाई पी है, क्यू वाई पी, हम इसके बदले भी जेड वाई क्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में बराबर है। ये गिवन में भी लिखा हमने, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी जो है वो तो जेड वाई क्यू के बराबर है, तो गिवन में है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना इनको, वाई क्यू रे वाई क्यू इनको बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, तो दो एंगल बन रहे हैं आपस में बराबर है। तो हम क्यू वाई पी के बदले जेड वाई क्यू लिख सकते हैं। तो क्यू वाई पी के बदले हम जेड वाई क्यू ही वापस लिखेंगे। एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तीन एंगल है, इनका सम 180 डिग्री है लीनियर डायरेक्शन के जरिए। आगे देखते हैं, 64 डिग्री वापस लिखेंगे प्लस ये तो ट्वाइस बन जाएगा, ट्वाइस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, ट्वाइस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 64 दाएं तरफ ले जाएंगे माइनस 64 डिग्री, तो निकलेगा ट्वाइस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 में से 64 निकालेंगे तो 116 डिग्री बचे। तो एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री। ये 2 जो मल्टीप्लाई था ये डिवाइड बन जाएगा, दाएं तरफ लेके ये डिवाइड बन जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा। एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 2 इज 58 डिग्री। तो हमारा एंगल जेड वाई क्यू 58 डिग्री निकल चुका है, जेड वाई क्यू 58 डिग्री निकल चुका है। अब हम इन दो को ऐड करके एंगल एक्स वाई क्यू जो हमारा पहला एंगल था, एंगल एक्स वाई क्यू से निकाल सकते हैं। एक्स वाई क्यू को हम निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमें ये पता चल चुका है कि जेड वाई क्यू 58 डिग्री है। ठीक, तो हम लिखेंगे नाउ एक्स वाई क्यू जो हमें निकालना है, एक्स वाई क्यू ये तो दो एंगल्स के बराबर है। एक्स वाई क्यू तो दो एंगल्स के बराबर है, एक तो एक्स वाई जेड हम लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस लिखेंगे एंगल जेड वाई क्यू। तो ये निकलेगा इम्प्लाइज एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, ये तो 64 डिग्री है तो गिवन है, और जेड वाई क्यू तो अभी 58 निकल चुका है, 58 डिग्री। तो हमारा एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो है, जब हम इन दो को ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे निकलता है 122 डिग्री। तो हमारा पहला जो था एंगल एक्स वाई क्यू वो निकल चुका है 122 डिग्री। इसके बाद हमें रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है। क्यू वाई पी जो एंगल है उसका रिफ्लेक्स एंगल यानी बैक साइड एंगल। तो हम लिखेंगे नाउ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जो है वो बराबर होता है, जब भी हम रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं तो 360 डिग्री लिखना है। 360 में से ये वाला अंदर वाला एंगल माइनस करेंगे तो हमें ये बाहर वाला एंगल निकल जाएगा। जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो 360 में से जो एंगल अंदर बचता है, यानी यहाँ पे एंगल क्यू वाई पी है, तो 360 डिग्री में से ये एंगल क्यू वाई पी माइनस करेंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा, यानी बाहर वाला एंगल निकल जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस करेंगे ये जो अंदर वाला एंगल है एंगल क्यू वाई पी। ठीक, तो दैट implies रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी को ऐसे ही रखेंगे, इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 360 डिग्री लिखेंगे माइनस ये जो एंगल क्यू वाई पी है
क्यू वाई पी, ये तो जेड वाई क्यू के बराबर है, तो आपस में बराबर है, और जेड वाई क्यू तो निकल चुका है यहाँ पे, जेड वाई क्यू 58 डिग्री, तो हम क्यू वाई पी के बदले भी 58 डिग्री लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हम जब माइनस करते हैं तो 302 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल यानी बाहर वाला एंगल बन जाएगा 302 बाहर कौन सा एंगल बनेगा 302, और अंदर कितना बना 50, जब दोनों को ऐड करते हैं तो 360 डिग्री बन जाता है। तो ओके, हमारे दो चीज़ निकल गए, एक तो हमें निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू दैट इज इक्वल टू 122 डिग्री, और फिर हमें रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी भी निकालना है, तो उसको हमने कैसे निकाला 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी जो है 58 डिग्री है, माइनस करके 302 डिग्री निकलता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 5.1। अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज 5.2, मगर उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थ्योरम्स की तरफ नज़र डालनी होगी, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 में इंशाल्लाह करेंगे। कुछ थ्योरम्स होंगी जो रिलेटेड है एक्सरसाइज 5.2, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।